then immediately it should be in your mind that what type of defense it is to be created, what police has done and how we have to save our person of the client. So in that situation, if you are sincere, then for sure this profession will pay to you. So we have shared our experience, and one thing I want to know, that as it has been conveyed by the Honorable Chairman, so you want a special gift today, or you want that you all should be questioned for an interview? Nobody is answering, so you are ready for interview. No? So you have to answer, do you need a gift, or I can make a request on your behalf to the entire team. I will become part and parcel of you all. If you all can make and raise a voice, ki some gift should be given because we are going to start our professional life. So is voice coming or not? So the indication and the clapping is depicting that we are in need of a gift today. So I am with you. So rest it is to be decided. I will convey of the views which I have seen and which is depicting from the hall. So really, it's a special day. So what I can say that you all shall keep shining and smiling like this. For sure your person will grow like a beacon. And sky's the limit. This is the profession where non-living thing which we say books. The time comes कि used to say कि come and read us. आप इतना इन्वॉल्व हो जाओगे, no need कि पैसा है या नहीं, पैसे की धन वर्षा निश्चित है. So stay blessed and keep shining like this. And the second speaker is a designated leader, and he had been chairman of this institution. He is member of enrollment committee, and he will share his views to all of you. Rakesh Sherawat ji, please come. The Honorable Chairman Sri R.S. Goswami ji, Sanjeev Nasir ji, Vice Chairman of the Council, my younger brother Sanjay Rathi, and all the advocates. I can say after 1 hour you all will be advocate. With the blessing of Chairman, I want you should give a big round of applause for yourself. मेहनत करके आप लोग आए हैं और उस मेहनत का आज आपको ये फल मिलना भी चाहिए. ये आज एक बड़ा पहली बार हमें ये देखा है. हम जितनी बार हम दोनों कमेटी में रहे हैं, स्टेट्स बार काउंसिल में आप जाओगे 6-6 महीने गेट मिलते हैं आपको. Only Delhi Bar Council is the council. Within 2 or 3 days में आपको enrollment मिलता है, and that is a matter of proud for you. So, वो भी हमारी बच्ची थी, उसके में भी कुछ हुआ कुछ प्रॉब्लम, इस कारण उन्होंने इसमें अपने आप को नेगेटिवली एक्सप्रेस किया, पर हमने तो उनका फिर भी कर दिया है. We have a positive mindset. हम यहाँ अदरवाइज एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आप लोगों को अगर हम एक को बुला के अगर सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछें तो भी आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा रात के 12 बजे. और हमारी कोशिश होती है कि जो अगर यहाँ पे 200 अगर एप्लीकेंट आए हैं तो हम सबका एनरोलमेंट करके दें ताकि उनको ये खुशी रहे. कॉर्पोरेशन के बावजूद ये सारा स्टाफ लगा हुआ है, इतना वो है, उसके बावजूद इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएशन दे थोड़ा सा मन दुखी होता है कि भाई फिर कंप्लेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए. इवन जजेस ने हमें कहा है ये आज की युवा जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेशेंस में. हम कोर्ट्स में जाते हैं, घंटों खड़े होते हैं, शेयर भी नहीं मिलती हमें, वहाँ तो हम कंप्लेंट नहीं करते हैं. एंड इन द सेम वे दिस इज अवर quasi-judicial work. This is we are backed by Supreme Court, by the judgment of Justice Sanjay Kishan Kaur, that if we feel that the applicant don't possess the elementary knowledge of law, we can defer his application, rather we can reject it. We have that power.
but we are not exercising that power at all because we want कि आप लोग ये सेलिब्रेट करें। आज इतने दिनों के बाद अगर आपने इतनी मेहनत के बाद आप यहाँ पे आए हैं, आपके पेरेंट्स इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा बच्चा बुजुर्ग बनेगा। ये आपको बुलाया इसलिए भी जाता है कि जजेस ने कंप्लेंट की है कि मॉरल एथिक्स नहीं है, प्रोफेशनल एथिक्स नहीं पता। ये हमें आपको बताएंगे। हमें 33 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे चेयरमैन को 35 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे नसीर साहब को जो प्रधान रहे हैं 30 बार के, सबसे एशिया की सबसे बड़ी बात। हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं ताकि आप कोई गलती ना करें। ये आपको इसलिए बुलाया जाता है। आपको कंप्लेंट्स आती हैं, आपने वकालतनामा फाइल कर दिया, कोई फीस पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप नहीं गए, केस डिसमिस हो गया, आपके खिलाफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बन गया। क्यों? क्योंकि आपने कोर्ट को जाके इन्फॉर्म नहीं किया कि ये मेरी इसका फीस का कोई डिस्प्यूट है और मैं अपना वकालतनामा वापस ले लेना चाहता हूँ। क्योंकि ये कंप्लेंट्स यहाँ पे आती हैं, फिर आप लोग सिफारिश ढूंढते हैं और क्लाइंट वो तो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड होता है, ऑर्डर शीट में लिखा होता है नन फॉर प्लेंटिफ, नन फॉर डिफेंडेंट, उसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर आपके लाइसेंस कैंसिल होता है। दोस्तों, ये जो 1-1.5 घंटा आपका है बहुत प्रीशियस है। जो आप बात बताएं, आप अगर उसका 10% भी फॉलो कर रहे हैं तो आपके जीवन में जो आप गलतियां कर सकते हो नहीं करोगे। ये आपके फायदे के लिए जो हम आपको यहाँ पे बुलाते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट तो फिर कहीं ना कहीं से आपको हो गई। बार काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए आपको। बार काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी जिसके 25 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और उसका मेन काम है आपका वेलफेयर के लिए, एडवोकेट्स के लिए। आपको पता है सिर्फ दिल्ली बार काउंसिल ही एक ऐसी बार काउंसिल है जो अपने यहाँ रजिस्टर्ड एडवोकेट्स को 5 लाख तक लाइफ कवर देती है मेडिकल रिइंबर्समेंट के बिल का, और 10 लाख का लाइफ कवर दे रही है। कहीं भी ऑल ओवर इंडिया ये अवेलेबल नहीं है। और ये शुरुआत हमने की थी जब मेरे बड़े भाई चेयरमैन थे इस काउंसिल के 2012 में, RS गोस्वामी जी, और मैं उनके साथ वाइस चेयरमैन था। ये पूरी टीम हमने तब वो टीम रखी जब हमने राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम किया था और वहां से एक आवाज उठाई थी कि एडवोकेट सोशली सिक्योर नहीं है। आज हम ठीक है तो हम कोर्ट जा रहे हैं, हमारी कमाई हो रही है, बीमार हो गए क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा। तो वहां से हमने आवाज उठाई, वो लड़ाई हम लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट में 2018 में जब हम चुनाव जीत के आए, गवर्नमेंट ने हमारी बात मानी और दिल्ली गवर्नमेंट ने विद द एफर्ट्स ऑफ वाइस चेयरमैन, क्योंकि आप पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष भी हैं, इनके सबके एफर्ट से हम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने आपके लिए 5 लाख तक के आपके मेडिकल बिल्स को रिइंबर्समेंट कराने की सुविधा दी और आपको 10 लाख का लाइफ कवर दिया। तो ये एक ऐसी चीज है। बार काउंसिल ने कोविड टाइम में बहुत मदद की अपने यहाँ जो जितने भी रजिस्टर थे। हमने 25 करोड़ रुपए अपने एडवोकेट्स को दिया। हमने एक पोर्टल बनाया जिसमें हमने सबको ओपन कर दिया कि जो भी अप्लाई करेगा इस पोर्टल पे एप्लीकेशन लगाएगा अपने एनरोलमेंट नंबर के साथ, उसको वेरीफाई करने के बाद हम उसको 5,000 7,000 जो भी हमने डिसाइड किया हमने सबको दिया, सबके बैंक अकाउंट में गया। ऐसा नहीं कि यहाँ लाइन पे लगी। तो बार काउंसिल हर स्टेज पे आपके साथ खड़ी है क्योंकि हम आपकी पेरेंट बॉडी, आपकी जो समस्याएं होंगी उसको हम सुनेंगे और उसको हम दूर करेंगे। कोविड पीरियड के दौरान हमारे 170 एडवोकेट्स हमारे को साथ छोड़ के चले गए। उनकी फैमिलीज को हमने हर एक फैमिली को 10-10 लाख रुपए दिलवाया ताकि उनकी फैमिली उनकी एक्सेस में ऐसा ना हो कि उनकी हिम्मत चुराना लगे। जब मैं चेयरमैन था मैंने देखा कि बार एसोसिएशन के पास फंड नहीं है, तो पूरी काउंसिल के सहयोग से मैंने हर बार एसोसिएशन को 25-25 लाख रुपया दिया ताकि जो भी बच गया हो एडवोकेट्स वो बार एसोसिएशन की सहायता कर सके। हम इतना कुछ आपके लिए सोचते हैं, इतना कुछ करते हैं, वो इसलिए कि वकील ये हमारे सब परिवार है। हम सब एक वकील की यूनिटी पूरी ऑल ओवर इंडिया, सरकारें भी डरती हैं इस यूनिटी से ताकि आप एक दिल से जुड़ो इस इंस्टीट्यूशन से। ये ऑफिस हमारा थोड़ी है, कल को आप भी आपके चुनाव लड़के इस ऑफिस में आ सकते हो। इसका हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे इन दिनों जो एनरोलमेंट के आ रहे हैं
350-400 एप्लीकेंट्स आ रहे हैं। ये सारा और एक्सटेंड होगा, आगे तक भी एक्सटेंड होगा। ये काम इसीलिए चल रहा है, एक दिन में तो नहीं हो सकता ना ये। तो दोस्तों, ये सारी सुविधाएं हम आपके लिए कर रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए, ये मेरा तीसरा टर्म है, गोस्वामी जी का ये तीसरा टर्म है। हम चेयरमैन भी रहे, हम एनरोलमेंट कमेटी में पहले भी रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे, मैं वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ। तो ये हमें बार बार क्यों चुना जाता है? क्योंकि हम आपके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, आपको, क्योंकि आने वाले टाइम में चुनाव ड्यू है। 2018 के बाद हर 5 साल बाद चुनाव होता है। 2023 तक हमारे टेन्योर है, 2024 में चुनाव है। आपको वो चुनने चाहिए, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो आपके वेलफेयर के बारे में सोचे। अगर आपके नुमाइंदे ऐसे होंगे जो चुन के आ जाए, उसके बाद आपके बारे में कुछ ना सोचे, तो फिर आप कौन सोचेगा? तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जब आप अपने वोट कास्ट करो तो ये देखना कि 2018 से 2023 तक आपके लिए क्या क्या काम हुआ, और अगर हम जीतते हैं तो हम फिर कोशिश करेंगे आपके वेलफेयर के लिए काम करने। मेरे ध्यान में है, अगर कोई काउंसिल, क्योंकि ये तो 2500 का एक पूरा समूह है जो एक मिल के काम करता है कि नए एडवोकेट्स को स्टाइपेंड मिले। मेरा ये भी है, क्योंकि हमारे पास फंड्स सिर्फ वो फंड होता है जो आप एनरोलमेंट फीस देते हो, हम उसको फिक्स डिपॉजिट में रख के बड़ा सेफ उसमें रखते हैं और इमरजेंसी के टाइम पे यूज करते हैं उसको। एक यहाँ पे इंडियन कमेटी है जिसके चेयरमैन गोस्वामी जी भी, मैं भी मेंबर हूँ। अगर किसी एडवोकेट को कोई ऐसी कोई इमरजेंसी पड़ जाए कि वो इनकैपेसिटेट हो जाए काम करने में, तो बार काउंसिल उनको भी मदद करती है मंथली। तो ये ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज लोगों को पता ही नहीं लगता है क्या क्या सुविधा हो सकती है। लेकिन इन फैसिलिटीज का आपको फायदा तब मिलेगा जब आप एडवोकेट बन के किसी ना किसी बार एसोसिएशन के मेंबर बन जाओगे। अब ये बात आपको कौन बताएगा? यहाँ पे आके ही तो पता लगेगा ना आपको। आप जहाँ भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, आप वहां जाके मेंबरशिप लीजिए, वो मैंडेटरी है। दिल्ली गवर्नमेंट का हर साल पोर्टल खुलता है अप्रैल मई में, नेक्स्ट ईयर खुलेगा। आप सब लोग अप्लाई करेंगे, मोमेंट आपका एबीआई एग्जाम क्लियर होगा, आप एलिजिबल हो जाओगे उसकी स्कीम के लिए। तो इतनी बारीकियों से कोई आपको बताएगा नहीं, और ये हम एनरोलमेंट कमेटी का ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एट द टाइम ऑफ एनरोलिंग यू वी शुड मेक यू अवेयर कि व्हाट बार काउंसिल कैन प्रोवाइड फॉर यू। और इस वक्त फिर हम ये भी आपसे कहते हैं कि हाँ, आने वाले टाइम में आप वोट उन्हीं को देना जो आपके वेलफेयर के बारे में सोचे ना। अगर आपको लगता है कि पिछली काउंसिल ने अच्छा काम किया है तो आप देना ना, तो मत देना उसको। तो ये सारी चीजें हैं, और हम आपको डिस्पाइट द फैक्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द पावर टू द एनरोलमेंट कमेटी दैट वी कैन रेफर द एप्लीकेशन, उसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि हम किसी की एप्लीकेशन रेफर ना करें, कोई रोक नहीं। तो मेरी आप लोगों को ये शुभकामनाएं हैं कि आप नए आयाम छुएं, नई ऊंचाइयां छूते हुए अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। और आज हम कोशिश करेंगे कि आप सबको यहाँ से एनरोल करके भेजें, और ताकि आप शाम को जाके सेलिब्रेट कर सको, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लो। लेकिन सेलिब्रेशन में ये मत भूल जाना कि कहीं पता लगे कि भाई ठेके से फोन आ रहा है आपके लास्ट एडवाइस हो रहा है अपने एडवोकेट्स ब्रदर को मैं ये कहना चाहूँगा, हम तो 90s में थे जब हमारी शादी हो गई थी। आज के टाइम मुश्किल है एडवोकेट्स के लिए। लड़कियों की तो शादी इसलिए नहीं होती कि वो लड़के वाले डरते हैं भी एडवोकेट है, और लड़कों की इसलिए नहीं होती कि भाई एडवोकेट कर ही क्या रहे। तो इसका जो जहाँ दाव लगे पहले शादी करने लगे, क्योंकि ये सोचते हो, अगर ये सोचोगे पहले सेटल हो गए, सेटल तो पूरी जिंदगी होती रहोगी। हम भी आज तक सेटल हो गए। तो इसलिए लाइटर वे में भी है और आपकी एडवाइस भी है, आप लोग बार काउंसिल का नाम रोशन करें, कोई ऐसा काम ना करें जिसके खिलाफ आपके डिसिप्लिनरी एक्शन हो, यही चाहता हूँ मैं। और क्योंकि जब हम हमारे हाथ से लोल होंगे, कोई अच्छा काम करोगे तो खुशी होगी हमें, कुछ लोग जजेस बनेंगे, हमें कम से कम ये होगा भाई हाँ हमने गोल किया है।
कुछ आप में से नेता बनेंगे, कुछ आप यहाँ पे चुन के आएंगे। मैं भी जब आया था 90 में, मैंने कभी सोचा कभी तक मैं मेंबर बार काउंसिल बनूंगा, सपने में भी नहीं था। पर और हालात कैसे बनते चले गए, यहाँ पे भी इंटरेस्ट हो गया। तो मैं आप लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। Thank you, sir, for your rule of affection which we have showered on this gathering. No doubt, it is a day of celebration. And such days have been in past also with other students. And we have received call from White Shop Green Park. The documents are lying here, so it was very clear and to the person concerned. So celebration should be in a good way. So now the time has come, you will be more showered with the experience by the resourceful identity who is Vice Chairman of this institution, Mr. Sanjeev Naseer. हम लोग जब हॉल में आए तो बहुत खुश माहौल में हम लोग बैठे हुए थे। लगा इसी वजह से बाद में पता चला उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हो सकता है तो एक बार थोड़ा जोश से, क्योंकि सारा युवा यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं एक दो नारे लगता हुआ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी फॉर्मर चेयरमैन राकेश सहरावत जी, जो अभी गवर्नमेंट कमेटी के मेंबर हैं, और संजय राठी जी, जो इस इंस्टीट्यूशन को एज सेक्रेटरी अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और गवर्नमेंट कमेटी के मेंबर हैं, दोनों ने अपनी बातों में एक चीज बताई कि बार काउंसिल दिल्ली, जिसके आप मेंबर बनने जा रहे हैं, ये कितना प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। पूरे देश के अंदर लगभग जितने हाई कोर्ट हैं उतनी ही बार काउंसिल हैं, और हर बार काउंसिल में आप जाके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। लेकिन आप लोगों के को सरप्राइज होगा कि दिल्ली बार काउंसिल अकेली ऐसी बार काउंसिल है जो सबसे ज्यादा वेलफेयर की चिंता करती है अपने मेंबर्स की, जबकि वेलफेयर के लिए बार एसोसिएशन बनती है। जैसे ही आप इन्वॉल्व होंगे, आप प्रैक्टिस में जब जाएंगे, लिटिगेशन में जाएंगे, तो किसी न किसी बार एसोसिएशन की मेंबरशिप मैंडेटरी रहेगी, तो वो एसोसिएशन आपके वेलफेयर की चिंता करेगी। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली बार काउंसिल इज द एक्सेप्शन बॉडी जो वेलफेयर की भी चिंता करती है। और डिटेल में सहरावत साहब ने बताया कि हमने कोविड के दौरान कितनी सहायता की। स्टेट बार काउंसिल के वजह से, दिल्ली बार काउंसिल के वजह से वी आर द ओनली स्टेट जहां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक बड़ी स्कीम, जिससे मेडिक्लेम पॉलिसी में 5 लाख और टर्म इंश्योरेंस में 10 लाख रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा श्रेय आज की इलेक्टेड बॉडी जो बार काउंसिल दिल्ली बैठी है उसको जाता है। वो स्टेट से भी वेलफेयर की चिंता करवा रही है हमारी, और अपने लेवल पे, और हम लोगों के पास जो कॉर्पस ऑफ फंड है वो सिर्फ मोटा वही फंड है जो इनरोलमेंट के टाइम पे आप लोगों का यहाँ पे जमा हुआ है। और पूरे हिंदुस्तान में, शायद चेयरमैन साहब इस बात को सहमत होंगे मेरे, पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम सब्सक्रिप्शन जो इनरोलमेंट की फीस है वो दिल्ली बार काउंसिल की है। सबसे कम टाइम साल के अंदर। आई थिंक हम लोग जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग तो एज ए वाइस चेयरमैन मेरी ज्यादा जिम्मेवारी नहीं है, मैं इस मीटिंग के ओर होते ही निकल जाऊंगा, लेकिन आप 5 घंटे तक यहाँ पर बैठ के एक एक फॉर्म को सिग्नेचर पर्सनल साइन होंगे, और एक भी सिग्नेचर किसी फॉर्म पे गलत हो गया तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा आपको जो इंतजार करना पड़ा इस ऑफिस के अंदर, जो रिनोवेशन वर्क चल रहा है, इसमें बैठने में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई, तो इस चीज को आपको आज से ये मानना चाहिए, आपके लिए आज का डे बहुत इंपॉर्टेंट डे है। क्यों इंपॉर्टेंट डे है? जिस दिन आपका एलएलबी में एडमिशन हुआ होगा उस दिन भी शायद आप लोगों को चक्कर लगाना पड़ा होगा, कभी कॉलेज में गए होंगे, कभी आपने फॉर्म लिया होगा, कभी आपने फीस जमा करवाई होगी, आपके पेरेंट्स भी साथ गए होंगे।
वो दिन आप याद कीजिए। लेकिन आज आपको कुछ आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं, जैसे राठी साहब ने और सरावत साहब ने अभी बोला, और हमारे चेयरमैन साहब जब बोलने के लिए खड़े होंगे तो आप हमारे पहले वाले जितने पूर्व वक्ता है उनको सबको भूल जाएंगे। आपकी वाणी में इतना मिठास है और इतना एक्सपीरियंस है आपका। मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं, आप 1987 से इनरोल्ड हैं, 35 साल कंप्लीट करके 36वां साल चल रहा है। तो सोच के देखिए कि आप लोगों की तो यहाँ पे बैठे हुए 90% लोगों की इतनी उम्र भी नहीं है। तो इतना एक्सपीरियंस हमारे चेयरमैन साहब के पास है, जो इनरोलमेंट कमेटी की जिम्मेवारी है। आपको कम से कम समय लेकर आपको यहाँ पे इनरोलमेंट करेंगे, ऐसी रिक्वेस्ट आपके यहाँ पे मैं भी कर देता हूँ। चेयरमैन साहब अपने प्रोफेशन में, अगर आप प्रोफेशन में आएंगे, बहुत सारों को इन्हें सुना भी होगा आर.एस. गोस्वामी जी के बारे में। आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और अपने फील्ड में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी नाम इनका आया हुआ है। फैमिली डिस्प्यूट्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं, लाखों केसेस इन्होंने रिजॉल्व करवाए हैं, अपने प्रोफेशन को भी में भी बुलंदियों में हैं। और इस बार काउंसिल के माध्यम से जितनी सेवाएं इन्होंने की है, वी आर द ओनली बार काउंसिल जिसने अपने कार्यक्रम विज्ञान भवन तक किए हैं। और उस विज्ञान भवन में जो कार्यक्रम हुए थे तो आपके नेतृत्व में वो कार्यक्रम हुए। आप लोगों के बीच में जो साथी आपको इन्वॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो जितना समय दे रहे हैं, और ये सारी ऑनररी और वॉलंटियर सर्विसेज है। इसके लिए कोई ये पेन जो है, ये पेन भी अपने घर के यूज कर रहे हैं हम लोग। कोई एक भी पैसा जो 14,450 आपने जमा करवाई है फीस, इसका एक भी पैसा कोई मेंबर्स अपने लिए चाय का कप भी नहीं पीता है। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग ये सब वॉलंटियर सर्विसेज, ऑनररी सर्विसेज हैं, और ये इसलिए हैं क्योंकि हम भी कभी आपकी तरह इन्वॉल्व होने के लिए आए थे। हमारे सीनियर्स ने जब हमारे को इन्वॉल्व किया था तो हम लोगों को भी इसी तरीके से गाइड किया था जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं, जब हम छोटे थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग अगर हमारे से नाराज भी हो जाते थे या हमारे को उनसे कोई नाराजगी होती थी, तो हमारी जरूरत और हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने बोलने की। अच्छी बात है, आज आप हमारे बच्चों की तरह हैं कि हमारे बच्चे हमारे सामने खड़े होकर ये बोलते हैं सर ये गलती है और ये यहाँ पे ठीक होना चाहिए। हमारे को अच्छा लगा उस बच्चे ने ये बात कही, लेकिन उसका एक तरीका जरूर होना चाहिए। आज आप जब प्रोफेशन में जाएंगे तो बिल्कुल ठीक कहा राठी साहब ने, हो सकता है आपका मैटर, आप सुबह 10 बजे कोर्ट में खड़े हो गए और आपका मैटर कॉल हो रहा है 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो आप क्या करेंगे? कोई कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी कोर्ट के अंदर अगर 50 लॉयर्स गए हैं और 50 वहां पे सीटें हों, मुश्किल से 10 लॉयर्स के लिए सीट होती है। 40 लॉयर्स या तो खड़े रहते हैं या अपनी टर्न का इंतजार करते हैं बाहर खड़े होकर। तो आप ये मान के चलिए कि आज के बाद आपको एक नया चैलेंज मिलने वाला है, समाज से भी, सोसाइटी से भी, आपके परिवार से भी। क्यों? क्योंकि आज आप एज स्टूडेंट कुछ भी कर सकते हैं। सरावत साहब ने राइटर मूड में कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पास ऐसी कंप्लेंट बार काउंसिल में आई कि इनरोलमेंट के बाद स्वाभाविक है, बहुत हिस्टोरिकल डे है आपका, सबको खुशी से अपना एंजॉय करने का अपना अपना तरीका है। हमारे पास कंप्लेंट आई रात को, क्योंकि यहाँ पे 10-10, 11-11 बजे तक ये सिग्नेचर करते हैं कि किसी लिकर शॉप पे जाके उन्होंने एंजॉय किया और गलती से अपने डॉक्यूमेंट वहां पे भूल गए। ऐसी कंप्लेंट भी बार काउंसिल में ना है, वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। हम लोग आज के बाद कहाँ खड़े हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, वो सब चीजें एज ए लॉयर नोटिस की जाएंगी। आपकी एक गलती पूरी फर्टिलिटी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी इसी ऑफिस को पावर है। आपने देखा होगा पीछे 20,000 के अंदर कुछ वकीलों का झगड़ा हो गया था। उस झगड़े के बाद आज भी कम से कम 20 लॉयर्स अभी सस्पेंड चल रहे हैं। उनमें से हो सकता है परमानेंट लाइसेंस कई लोगों का चला जाए और जेल में 7 लॉयर्स आज भी 2 महीने से जेल में है। हम लोगों को बड़ी शर्म भी आती है, परेशानी भी होती है, लेकिन अगर मान लो इस काले कोट को पहन के कोई आदमी ये चाहे कि वो कुछ भी गलत कर सकता है, तो अभी तो हो सकता है एज ए स्टूडेंट आपको माफी मिल जाए, लेकिन एज ए लॉयर ना सोसाइटी, ना आपका परिवार, ना कोई कोर्ट ऑफ लॉ या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली आपको, हमको, किसी को भी स्पेयर नहीं करेगी। तो इसलिए आप एक जिम्मेवार नागरिक बनने के बाद आज यहाँ से बाहर निकलेंगे, एज ए लॉयर आपकी पहचान होगी। एज ए लॉयर आप जज भी बन सकते हैं, बड़े पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट भी बन सकते हैं। आपको फ्यूचर में
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स आप चलाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जुडिशरी में जाएंगे। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो अपने अपने फील्ड में बुलंदियां छुएंगे। ऐसे ही चाहे जितने भी बड़े नाम हैं आज, चाहे कपिल सिब्बल जी हैं, चाहे उससे पहले जेठमलानी जी रहे, जेटली साहब रहे, वो सारे नाम इसी तरीके से बार काउंसिल दिल्ली में एनरोल हुए। तो आप में से कोई ना कोई आज बुलंदियों में जरूर जाएगा, लेकिन वो वही जाएगा जो पूरे पेशेंस से, पूरे डिसिप्लिन से और पूरी सिंसियरिटी से और मॉरल और एथिक्स को ध्यान में रखे। शिकायत किसी को भी हो सकती है, लेकिन शिकायत को रखने का तरीका वो स्वाभाविक तौर पे ऐसा होना चाहिए कि वो उसकी डिग्निटी को भी और उस इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी को भी दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि चेयरमैन साहब अभी जिनके भी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं उन सबको इनरोलमेंट अपने उद्बोधन के दौरान आपको बताएंगे, और आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट करते हुए और ये शुभकामनाएं देते हुए कि आप एक ऐसे बार काउंसिल दिल्ली का पार्ट बनने जा रहे हैं जो इस हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट बार काउंसिल मानी जाती है। आप ऐसे शहर में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन शहर माना जाता है। यहीं पे देश की सर्वोच्च न्यायालय है, यहीं पे मैक्सिमम ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे काम करते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स यहाँ पे हैं। तो आपको एक जगह पे इतना वर्क अपॉर्चुनिटी और शायद किसी दूसरे सिटी में नहीं मिलेगी जितनी दिल्ली के अंदर मिलेगी। तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहने का जिनको सौभाग्य मिला, बार काउंसिल दिल्ली में जिसको गवर्नमेंट होने का सौभाग्य मिला, इस मामले में आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आप लोगों को ये शुभकामनाएं देते हुए कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और ये उम्मीद करते हैं कि आप पूरी ताकत से अपने प्रोफेशन में और अपने परिवार की इज्जत और देश के मान सम्मान को बढ़ाएंगे, अपने प्रोफेशन का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और बार काउंसिल दिल्ली के जितने भी साथी, क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग इलेक्ट होकर यहाँ पर आते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से जब भी इलेक्ट होकर इलेक्शन का टाइम आएगा तब हम आपसे दो ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जिस प्रोफेशन के अंदर आप एंटर हुए हैं वहां पर अपने उन सीनियर्स का सम्मान करेंगे, उन सीनियर्स में से और बेहतरीन सीनियर्स को जो आपके बीच में अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्योंकि 50 लोग आए हैं उनमें से आपको 5 लोग इलेक्ट करने हैं, तो वो बेहतरीन आप इलेक्ट कर पाएंगे, अपने प्रोफेशन को भी आप बेहतरीन तरीके से चला पाएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. The words of your wisdom really will enlighten the gathering which is here in this state laundry unit. Now the time has come that before getting and providing gift to you, I am requesting the Honorable Chairman to shower a token of love from the Vice Chairman, Mr. Sanjeev Nasir ji. Now I am requesting the Honorable Chairman and Vice Chairman to present a token of love to the dynamic facility that is allowed. Now time has come for receiving the token of love by me also. Thank you, sir. Now again, the special day is to be concluded with a special gift also. As the speakers have conveyed you what type of the personality we have in the shape of a chairman. वाक्य में मधुरभाषी तो है ही, सहज व सरल स्वभाव के ऐसा व्यक्ति तो हमारे चेयरमैन साहब का है, और हम सभी उनको प्यार से दिल्ली विधिक परिषद के चक्कर सुदर्शन धारी भी कहलाते हैं. We used to represent him like this. So I am inviting the Honorable Chairman to express his experience on all of you. R.S. Goswami, please. Thank you, Rathi ji. अब आप सबसे पहले ही बताएं, आप लोग परेशानी क्यों हो रही दादा? ऐसा तो नहीं मुझे कुछ करने के लिए कर रहे हैं, ईमानदारी से। और इसको भी एडमिट करके बताओ जो हमने रोल किया वो कैसा लगा आपको? जिसको ज्यादा जल्दी है ले जाओ, तुम में से भी किसी को ज्यादा जल्दी हो रही हो वो आ जाओ। कहाँ जाओगे यहाँ से जान लेके?
जिनको जाना था वो चले गए। इसलिए जीवन में मेरे तीनों साथियों, तीनों छोटे भाइयों, आप लोगों को लगा होगा कि इतना समय, इतनी बातें क्यों की जा रही हैं, क्या जरूरत? आज के बाद यदि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, दुनिया में तुमसे खुश होगा तो तुम्हारे माँ बाप होंगे, और उनके बाद यदि नंबर आता है तो हम चारों व्यक्तियों का आता है जो हम क्या चाहते हैं आज, अपने जीवन का जो सामान हमारे पास है, जो कि भागवत में लिखा है कि ना चोर हार्यम, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, ना भाग भाज्यम, जिसको भाई भी नहीं ले जा सकता, बंटवारा कर सकता, ऐसी ज्ञान, ऐसी बुद्धि, ऐसा एक्सपीरियंस जो आज हम चारों के पास है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आज आप हमसे सारा लूटें। मंच पर आसीन इस बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन श्री संजय विशाल साहब, मैं और आप ने राजनीति में 7 कदम रखा था, संघर्ष किए जिस समय बाइफिकेशन के मुकदमे चल रहे थे, करण बेदी की स्ट्राइक हुई थी। आज आप बार काउंसिल में चुनकर आए, पहली बार आप वाइस चेयरमैन बने, इससे पहले आप 30,000 में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी की पोस्टों पर रहे, और आपने देखा कि अपनी सारी बातें उन्होंने आपके सामने रखी। श्री राकेश सहरावत साहब 2003 में हमारे साथ बार काउंसिल में आए, सेक्रेटरी रहे, चेयरमैन बने अभी पीछे कोविड के बाद, आपने अपने अनुभव रखे। श्री संजय राठी जी इससे पहले इस काउंसिल के आपके ऑनरी सेक्रेटरी थे, पहली बार चुनकर आए, और इसी टेन्योर में आपको एनरोलमेंट कमेटी में जगह मिली। मैं आप तीनों का अपनी तरफ से और अपने सभी नए साथियों की तरफ से स्वागत करता हूं। आप जब पढ़ने कॉलेजों में गए थे, कभी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, कभी सिटिंग जज, कभी प्रोफेसर, आप लोगों को किसी न किसी टॉपिक पर जरूर आए, और 1.5 घंटा, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा एक टॉपिक पर बात की। आप लोगों ने भी निर्णय किया होगा, किसी ने 12th के बाद, किसी ने ग्रेजुएशन के बाद, कितने साथी आपके बीटेक में गए, मैनेजमेंट में गए, बीबीए में गए, एमबीबीएस में गए, लेकिन आप लोगों ने निर्णय लिया, चाहे मजबूरी में लिया, चाहे परिस्थिति मत लिया, चाहे घरेलू हालात को लेके लिया, चाहे हमें कुछ आता नहीं था इसलिए लिया, हमने वकालत को चुना। लेकिन बात इस बात की है, आज आपने चाहे एनएलयू से पढ़े हो, चाहे आपने यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, चाहे आपने क्लैट पास किया हो, चाहे आप जामिया से आए हो, लेकिन चाहे आप चौधरी चरण सिंह से आए हो यूनिवर्सिटी से, चाहे ऐसे कॉलेजेस से आए हो जहां पर ना प्रिंसिपल है ना प्रोफेसर है, एग्जाम दे के आए हो ना दे के आए हो, लेकिन आपने बार काउंसिल में फॉर्म भरा है, तो बार काउंसिल दिल्ली और ये मेंबर आपका बराबर सम्मान करते हैं। आपने कहीं से भी किया हो, आज आप लोगों को खुशी इस बात की होनी चाहिए कि मिनी इंडिया आपके सामने बैठी है। पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ इन्वॉल्वमेंट कराने आते हैं, कैपिटल है देश की। ये लोग कहाँ मिलेंगे आपको? जैसे कहते नहीं कि गुरु भाई, वो गुरु भाई नहीं बचे जो उन्होंने लॉ किया आपके साथ, वो गुरु भाई बचे जो आज आपके साथ एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व कराने साथ रहते हैं। पूरे जीवन आप एक परिवार जुड़ जाएगा मित्रों। क्या ये परिवार जिस समय एक ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं जब पूरे जीवन काम करना है, क्या वहां डिस्प्यूट चाहेंगे? क्या पहला दिन ही हम लड़ाई करेंगे? क्या पहले दिन ही हम झगड़ा करेंगे? पहले दिन हम केवल
ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि आपने हमको यहाँ तक लाए और बार कौंसिल दिल्ली के उस कुर्सी पे बैठाया जहाँ से आज के बाद हमारे जीवन की नई हमारी योजना शुरू हो जाएगी। आप जन्मदिन भूल सकते हैं? क्यों? जाओ टेंथ के सर्टिफिकेट पे लिखा है। डेट ऑफ मैरिज भूल सकते हैं? नहीं बोलने देती सर। डाइवोर्स होगी भूलिए। लेकिन आप पूरे दिन 24 आवर्स, अभी मैं ड्राइवर से कह रहा था गाड़ी में बैठने के बाद काफी दूर निकल आया, मिलकर ऊपर से पर्स का मतलब आई कार्ड। बिना आई कार्ड के हमारी वक्त क्या है? कौन हुआ, कहां से आए? कोई भी रोक लेगा, आप कांस्टेबल भी रोक। तो 24 आवर्स आपका आई कार्ड आपको याद दिलाएगा, सामने वाले को बताएगा कि मैं एक पावरफुल व्यक्ति हूं, मैं एक एडवोकेट हूं दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये दिन कैसे भूल सकते हैं? आज से 25 दिन पहले, 20 दिन पहले हमें हम मीटिंग करते हुए हमें सूचना मिली कि हमारे बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन रहे, एनरोलमेंट के चेयरमैन रहे, जिन्होंने मुझे 1987 में एनरोल किया, उनकी डेथ। मेरे पास 2 ऑप्शन बचे थे, वाइस चेयरमैन साहब भी थे, राकेश जी भी थे, राकेश साहब भी थे। आइदर वी शुड ज्वाइन और वी शुड बी हियर। हमारे आंखों में आंसू थे, हमारे सारे बच्चों ने खड़े होकर उनके लिए 2 मिनट के लिए मौन रखा। हमने ये कहा कि जब हम उस व्यक्ति ने जिसने हमें एनरोल किया है, हमारे लिए उससे बड़ा कोई नहीं है। हमने डिसाइड किया कि वाइस चेयरमैन साहब बार काउंसिल की तरफ से जाएंगे और हम लोगों ने उन लोगों का एनरोलमेंट किया। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि आप अपने कर्तव्य से अलग हटिए हमारे लिए, हमने उन बच्चों का एनरोलमेंट किया। यदि हमारे अंदर इस बात की क्षमता है, भाव है, तो क्या हम उम्मीद नहीं करेंगे कि हमारे ये जो नए जनरेशन जब आज एनरोलमेंट होके और पैंट पहनकर और जब घर जाएंगे और प्रोग्राम करेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने माँ बाप से सम्मान लेंगे, हमें खुशी नहीं होगी? लेकिन कई बार क्या लगता है कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कुल्लू में फेंक, हम ज्यादा मीठे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे एक आदमी का 1 घंटे भी एनरोलमेंट लेट ना हो, क्योंकि 1 घंटे के एनरोलमेंट पर एक आदमी हाई कोर्ट का जज बनता है, एक आदमी केवल डिस्ट्रिक्ट जज। इसकी वैल्यू आज समझ में नहीं आएगी, बहुत दिन के बाद। कितने लोग हैं जो अभी मोबाइल पे हैं, कितने लोग हैं अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, वो दोस्त कहीं नहीं भाग रही, ना वो दोस्त कहीं जा रहा है। आज के बाद किसी की दोस्ती नहीं बचेगी आप लोगों में। जब एक के पास केस आएंगे, एक के पास केस नहीं आएंगे, उसी दिन दुश्मनी हो जाएगी। यहाँ तो आपको ओलंपिक की तरह दौड़ना पड़ेगा। जब 2 सिस्टर्स एक साथ दौड़ती हैं, पहले वो देश के लिए दौड़ती हैं, फिर कंट्री स्टेट के लिए दौड़ती हैं, फिर सिटी के लिए दौड़ती हैं, फिर माँ बाप के लिए दौड़ती हैं, जब लास्ट में रह जाती है तो अपने एक दूसरे के लिए दौड़ती है, फिर अपने अपने लिए दौड़ती है। तो यहाँ आपको अपने लिए दौड़ना है, साथ में लेकर कोई किसी को नहीं चल सकता। हम क्यों कहते हैं इन बातों को? क्या जरूरत पड़ रही है? एक एक आदमी को ऊपर बुलाएं, 10-10 मिनट लें, पूछें कहाँ से लॉ किया, कैसे लॉ किया, कितना। हम ये सोचते हैं कि हम क्यों आपका हिरासमेंट करें। हम तो केवल आपको ये समझाने आए हैं कि दोस्तों, एजुकेशन आपने चाहे कहीं से भी ली हो, अब आज की डेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है तो इस बात का पड़ रहा है कि आज के बाद हमको डेट ऑनेस्टी की तरीके से हार्ड वर्क करके हमको बहुत बड़ा वकील बनना है। उसके लिए आपको जरूरत है 3 चीज: हैव पेशेंस, हैव ट्रस्ट, हैव कॉन्फिडेंस। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी। यदि 10 बजे अदालत है, 9:30 बजे, पौने 10 बजे। ये नहीं कि 10 बजे की कोर्ट है, हमारा एक आदमी कोर्ट लेके भाग रहा है, एक बैंड लेके आ रहा है, एक हम कोर्ट में भागे भागे जा रहे हैं, सब मेरा केस आ गया। तैयार होके केस में जाना है। यदि आप तैयार होके जाएंगे, जज आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, आप जज से क्वेश्चन करोगे। लेकिन किस वे में क्वेश्चन करोगे आप? पोलाइट वे में। किस वे में? वी आर पेइंग द रिस्पेक्ट, नॉट ए पर्टिकुलर पर्सन, वी आर गिविंग द रिस्पेक्ट टू द चेयर। हम कुर्सी को नमस्कार करते हैं। हमारे पास आज पावर है,
तो हम मिसयूज करें क्या उसका? आप किसका सम्मान कर रहे हैं? आप इंडिविजुअल आर.एस. गोस्वामी जी का, संजय नस्याल जी का, राकेश सहरावत जी और राठी जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप उनका सम्मान कर रहे हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले। 3 टेन्योर उनको हो गए, 4 से 6 तक एनरोलमेंट में था, फिर सेक्रेटरी बना, फिर 2009 में चुनाव लड़ा, 9 से 11 एनरोलमेंट में था, फिर चेयरमैन बना, फिर 18 में चुनाव लड़ा, फिर 18 से 20 तक एनरोलमेंट में था, और फिर दिसंबर में फिर दोबारा से 22 में हम एनरोलमेंट में आ गए। क्यों? चेयरमैन की बनने की इच्छा क्यों नहीं होती? सेक्रेटरी बनने की इच्छा क्यों नहीं हुई? भाई चेयरमैन बन लिए तो और पोस्टों पर तो आ नहीं सकते। केवल इच्छा ये होती है कि आने वाली पीढ़ी में जितना परिश्रम, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने या न बने, विधायक बने या न बने, सांसद बने या न बने, मंत्री बने न बने, लेकिन अपने काले कोट वालों के विधायक भी हम, सांसद भी और मंत्री भी। वो एजुकेटेड लोगों के, जो अनपढ़ लोग उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम तो उस कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, गर्व से कहते हैं हमें। दुनिया को सीखना हो, पॉलिटिशियंस को सीखना हो, वकीलों से सीखो। हमारे यहाँ कोई धर्म होता है, हमारे यहाँ कोई जाति नहीं होती, हमारे केवल एक जाति होती है, काला कोट हमारी जाति है, बैंड हमारी जाति है, जिसके पीछे हम काम करते हैं, सर्विस करते हैं, हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। जानते हैं आप लोग इस बात? कोई भी आदमी बताएगा कि वकील के पास ऐसा कौन सा राइट है जो बीटेक वाले के पास नहीं है, आईएएस के पास नहीं है, आईपीएस के पास नहीं है? रिप्रेजेंटेशन फ्रंट ऑफ कोर्ट जी, रिप्रेजेंटेशन फ्रंट ऑफ कोर्ट रिप्रेजेंटेशन तो कोई भी क्लाइंट जाके कर सकता है। दूसरों के लिए एविडेंस एक्ट के अंदर राइट है। आज सीख के जाइए, इतनी ताकत भर दूंगा आप लोगों के अंदर, जाके झगड़ा तो करना मत बाहर जाके, लेकिन तुमको लगेगा कि हम कुछ बन गए। क्या पावर है बताइए एविडेंस एक्ट के अंदर? कोई भी बताओ। राइट ऑफ representing others. गड़बड़ हुई फिर तो मीटिंग है तो एविडेंस अप्रूव कर सकते हैं। कोई भी बताइए, जितने बैठे पूरे इंडिया है। Right to certify the evidence. सॉरी, कब पढ़े आप? पुराना है आपका लोग। एविडेंस एक्ट के अंदर जो कम्युनिकेशन, आप क्यों बोल रहे हैं? अपने अधिकारों को पहचानो जैसे हनुमान जी ने पहचाने। समुद्र पार करना आपको एक कम्युनिकेशन का राइट है, अदरवाइज आधे एडवोकेट जेल के अंदर होते हैं, ईडी में और सीबीआई में। जो डिस्कशन अपने क्लाइंट के साथ करते हैं वो तो तुमसे ईमानदारी से डिस्कस करता है, तो तुमको विटनेस बॉक्स में नहीं लाया जा सकता। तो 2 अधिकार जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, जो अधिकार आज आपको मिलने जा रहे हैं 5 मिनट के अंदर कम्युनिकेशन में, चाहे वो मर्डर की बात कर रहे हैं, चाहे रेप की बात कर रहा है, चाहे आपसे 420 की बात कर रहा है, आपको विटनेस बॉक्स में नहीं लाया। बजाइए अपने लिए तालियों से। लर्नड काउंसिल पढ़ के आए हम उस कॉलेज से जहां हम एक दूसरे कॉलेज नहीं गए, और लिखा जा रहा है लर्नड काउंसिल। ये अधिकार सबको मिलेगा बराबर। यहाँ प्रसाद में कमी एक नहीं होगी कि एक को थोड़ा सा ज्यादा, एक को हलवा का, एक को किसी और चीज का, प्रसाद सबका बराबर। तो ये अधिकार यदि आपको मिल रहे हैं, ड्यूटी भी आप, ड्यूटी क्या है? क्लाइंट के साथ मिसलीड नहीं करना, क्लाइंट से झूठ मत। अब आप हमसे क्यों कहोगे? किसी ने कहा गुरुजी मेरा लड़का गुड़ खाता है, बोले 2 महीने बाद आना। फिर गया, बोले गुरुजी गुड़ खाता है, बोले 1 महीने बाद आना। फिर तिवारा गया, बोले बेटा गुड़ मत खा, बोले गुरुजी इस बात को आप पहले दिन बता देते, बोले पहले दिन क्या, मैंने कल तक गुड़ खाया है। हम आपसे तब बोल रहे हैं जब हम 25 साल से बार काउंसिल के आप लोग हमें चुनते हैं और 35 साल से वकालत करते हैं। यदि आज हमारे ऊपर एक इतना सारी छवि पर हमारे पर यदि आक्षेप लगेगा, क्या आप हमें वोट डालेंगे? कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऐसे होंगे, आज मत कहो, नो मत करिए, एनरोलमेंट होना है अभी, थोड़ी बोले आप तो हाँ करो जो मैं कह रहा हूँ। तो तब कहना जब एडवोकेट बन जाए। हमें अपनी छवि सार्वजनिक रखनी होती है, हमें महसूस होता है कि उनसे बेटर है पॉलिटिशियन से। जैसा भी नसीर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही, राकेश जी ने कहा कि हमारे पास अपना पेन भी, हम आपका पैसा एक ही पैसे का हिसाब रखते हैं, वो नेता थोड़ी रखते हैं। लेकिन हमें गर्व होता है हम पढ़ी लिखी समाज के जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हिंदुस्तान की पहली पार्लियामेंट में कितने थे एडवोकेट पता है आप लोगों को? पहली पार्लियामेंट में आधे वकील थे,
स्वतंत्रता संग्राम में आधे वकील थे। आज भी आप लोगों की जरूरत है कि देश के अंदर यदि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, देश के अंदर यदि हमें सामंजस्य स्थापित करना है, तो दुनिया में यदि कोई कौम है तो केवल एडवोकेट की कौम। हापुड़ में कांड हुआ है, सारे देश के वकील जाने, तुमसे बड़ी एकता किसकी होगी दुनिया में? यदि सबसे दुनिया में पावरफुल यदि कोई एसोसिएशन है तो वकील की एसोसिएशन, लेकिन उसके लिए हमें मेंटेन टू डेकोरम, प्रोफेशनल एथिक्स। अभी आप रोड पे डालो, अभी आप कोई भी कांड कर दीजिए, यू आर लॉ ग्रेजुएट, देखिए जस्ट आफ्टर एनरोलमेंट आप कोई भी काम करेंगे तो टीवी पे क्या आएगा? एडवोकेट। आप नहीं, हम आएंगे। बताइए वकील साहब, गोस्वामी जी सुना, यू आर द चेयरमैन ऑफ द एनरोलमेंट कमेटी, कैसे लोगों को आप एनरोल करते हो? यही कहेंगे ना? तो आप हमें विश्वास दिलाओगे कि ईमानदारी से काम करेंगे आप लोग? मेहनत से करेंगे? पैसा कमाएंगे? कैसे जोर से बोलो? नाम कमाएंगे? सॉलिसिटर जनरल में आप में से बनेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप में से बनेंगे? पहले हमें बताओ। जजेज आप में से बनेंगे? एक तो हो सकता है आप में से एक चीफ जस्टिस बैठा हुआ, हमें लोड नहीं। ये खुशी है। यदि कोई खुशी है तो ये खुशी है कि हमने इन्वॉल्व किया। आपको खुशी है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने हमें इन्वॉल्व किया वो बार काउंसिल के चेयरमैन बन गए। हमने इन्वॉल्व किया राकेश सहरावत जी उस हाइट पे पहुंच गए। हमने इन्वॉल्व किया संजय निषाद जी मंत्री बन गए दिल्ली सरकार में। हमने जिन्होंने इन्वॉल्व किया राठी साहब इतनी बड़ी पोस्ट पे आ गए। ये तो आपको खुशी होगी, लेकिन हमें खुशी होगी कि ये बढ़िया हमने इन्वॉल्वमेंट देखा था, आज ये लेजिस्लेटिव बन गया। तो खुशी हमें हुई या नहीं हुई? अब आप लोगों का समय बर्बाद किया हमने या कुछ काम की बात करी? अब आप हमसे चाहते क्या? आधे आधी बात कर रहे हैं, जितने चाह रहे उतने बता दो। 10 आदमी बोलिए। बाय वे ऑफ मैंने समझा पैसे के ऊपर। आप लोग चाहते हैं सभी का एनरोलमेंट हो? जिन लोगों ने सिग्नेचर्स नहीं किए, भागना मत, दौड़ना मत, भीड़ नहीं करनी, जिनके रह गए किसी कारण से, वो सिग्नेचर जरूर कर दे। बाद में दिक्कतें आती हैं कि हमारे सिग्नेचर थे और वहाँ हमारा नंबर नहीं आया। आराम से, जिनके सिग्नेचर नहीं हुए घबराना नहीं, लास्ट में बैठ के यहाँ बैठ जाना, सिग्नेचर अपने कर देना। तो आप लोग क्या चाहते हैं? एनरोलमेंट सबका इकट्ठा हो? इसके बदले हम भी तो कुछ मांगेंगे। क्या देंगे आप लोग? उस समय हम जब कहेंगे कि मैं गोस्वामी बोल रहा हूँ, बोले कौन गोस्वामी? यहाँ से निकलने के बाद ही शुरू हो जाओगे आप लोग। हम आपसे एक चीज चाहिए, पूरे जीवन काल छोटा सा लाइफ तो अच्छा, हमने अपने को इतने साल बाद बैठे तो रख ही रखा है। एक तो आप ये समझ लीजिए, वकील की कोई उम्र नहीं, कभी मत बताना अपनी उम्र, 5 साल फालतू बताना, क्लाइंट को कम मत बताना। क्लाइंट पूछे एनरोलमेंट कितने दिन का होगी, 2-2.5 साल तो होगी, कच्ची बात मत करना क्लाइंट के साथ। वकील जो जो आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी बढ़ती जाएगी। आपने हमारे सहरावत साहब को कितनी दोस्ती की है, आपको 30 साल हो गए, मुझे छोड़ के सारे खूबसूरत है, कौन नहीं है? जो जो उम्र बढ़ेगी आपकी, तो आपका पैसा बढ़ेगा, मर्सिडीज आएगी, फिर एक नंबर और बढ़ के आएगा, कमाओगे ना पैसे। हमें आपसे क्या चाहिए? आज के बाद कोई आपत्ति आप लोगों को आए, उसी में हमको कहीं मत बुला। किसी भी परेशानी के अंदर आप हो तो पूरी बार काउंसिल, नॉट ओनली दी 4 मेंबर, इंटायर बार काउंसिल आगे। हम कहीं भी मिले आप लोगों को, शादी में, परिवार में, कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ सारे लोग एक मार्केट में काम करते हैं, फिर भी वकील आपस में झगड़ा नहीं करते। कहीं भी मिले, जल्दी में, लेकिन हम नमस्ते आपको कर रहे हैं, कम से कम हमारी नमस्ते जरूर ले, तो तुमने तो करनी नहीं, हमने देख लिया आपसे कैसे नमस्ते आप लोगों ने। ये आप लोगों का प्यार हम चाहते हैं। वादा करते हैं आप लोग? नहीं करते? ध्यान रखेंगे पूरे जीवन काल। अब मैंने कुछ आगे बोला ना, फिर पंगा होगा। यदि अब मैंने ये कह दिया कि नहीं कर रहे एनरोलमेंट, फिर तुम सिवाय गालियों के कोई फिर तो एसोसिएशन बना
बना के 2 यहाँ आ जाएंगे, फिर हम इतनी देर क्यों रोके थे जी, क्या बात हो गई थी जी। दोस्तों, श्री राकेश सहरावत जी, श्री संजय राठी जी, श्री संजय घनश्याम जी, वाइस चेयरमैन संजीव आचार्य जी, तीनों के सहमति से, आदेश से, आज्ञा से, being a chairman of this institution of Endowment Committee, I am going to enroll all of you by the Bar Council. एनरोलमेंट होने के बाद 1 सेकंड हुआ, महसूस कैसे हुआ? अभी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। केवल कहने से नहीं, करने से। एनरोलमेंट के बाद हमने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ये तय किया कि जब हम एनरोल कर रहे हैं तो केवल बच्चा यहाँ से क्या लेके हम सभी को बैंड देंगे, अभी सभी बैंड लगाएंगे, इसका मतलब कन्फर्म लॉयर होंगे और लाइन से पीछे आके अपने फोटो खिंचाएंगे, जिससे हम वेबसाइट में हमने कैमरा वाले बुला रखा है, सबका पूरे देश में वेबसाइट पर जाएगा। एक लाइन रह गई थी कि पैसा कैसे कमाना, ये ध्यान रखना। क्लाइंट से जितना ज्यादा पैसा ले सकते हो वो आपकी काबिलियत है। और सभी के अच्छे भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपके परिवार को भी बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir. Really, the gathering is with a huge smile on their faces. Congratulations to all of you. It is a special day and a great day in your life. So whenever you have any problem, the numbers are there reflected on the message. You will feed those numbers in your mobile, and at any time you may call us for any type of help. We are always there, ready to help. You all remove your ties and wear this band. We have provided the sweets also to confirm that it is confirmed that you are part and parcel of the system. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भाई अभी तो बैंड लगाइए। आ जाइए। थैंक यू इधर से
भाई तो पीछे आ जा रहा थोड़ा हम यस सर आप भी मारोगे नंबर आप लोग इधर से चले आओ, उस साइड से जाना है आपको। इधर से थैंक यू अच्छा खाना ये वाला निकल ऊपर भाई साहब सामने हाँ सामने चल ना तो मेरे ये इसलिए लगा ही रास्ता थैंक यू भाई ट्राई कर दो यार नहीं अपना नहीं है ना सीधा क्लोज थैंक यू फिर टेढ़ा आ रहा है थोड़ा इधर आ जाओ इधर कर लीजिए फटाफट उतर आपके इधर सबकी फोटो खींचो है नहीं बस यार सर आ रहा है बीच में फोटो क्या बैठ के ले लो बैठ जाओ बैठ के बैठ भी सकते हो यस थैंक यू थैंक यू और पीछे